वाहिगुरु साहिब जी जब लो नहीं भाग लाल उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो। कल घोर समुंदर में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नह आयो। जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार इते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार। वाहिगुरु साहिब जी मलार एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते साध संगत पाई परम गते। रहाओ मैले कपरे कहाँ लाओ धोवा आवेगी नींद कहाँ लग सोवा। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो। झूठा बनज उठ ही गई हट्यो। कहो रविदास भयो जब लिखो जोई जोई किनो सोई सोई देखो। कहो रविदास भयो जब लिखो जोई जोई किनो सोई सोई देखो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु की प्यारी साध संगत जीओ इस पावन शब्दी विचार आप जी नूं सरवण करवा रहे ने सिख कौम दे महान विद्वान सत्कारयोग सिंह साहिब ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ जी इस पावन अस्थान ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹਨ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहज
ਭਉ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜਮਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦਾ
ਤੇ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ 1293 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੱਜ ਮੂਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਇਹ ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਹਿਲੂਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਆਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨੀਏ, ਟਹਿਲੂਏ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਆਈਏ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ,
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸੁਬਾ ਕੈ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਓ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਬੇਹੰਗਮਾਂ ਦਾ, ਜੰਗਮਾਂ ਦਾ, ਸਰੇਵੜਿਆਂ ਦਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ, ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ। ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਆਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। शायद मैं एक छोटी जी उदाहरण दिया। जदों भगत पूर्ण सिंह जी अकाल चलाना कीते, जिन्ने क वक्ते उत्थे बोले सी हर बंदे ने इको गल कही, ये सिखां दी मदर टेरेसा है। ते उस वक्त दे जथेदार ने कहा सी भी तुहाडे कोले होर कोई उदाहरण ही नहीं है, कोई तशबीह नहीं बची तुहाडे कोले। तुहाडे धर्म दे विच ये दस्सण वास्ते कि भगत पूर्ण सिंह कौन है कोई ना नहीं हैगा तुहाडे कोले। गल सिर्फ इन्नी है कि वो क्रिश्चनां दी सेवक सी। जे भगत पूर्ण सिंह भी क्रिश्चनां दा हुंदा ते अज पूरी दुनिया विच उहदा नां होना सी। क्योंकि साडे विच एक जिहड़ी सब तो वड्डी मुश्किल है वो की है कि असी किसी नूं अगे जाण नहीं दिंदे। साडे तां कोई धक्के नाल कोई निकल जावेगा ते भावें अज शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दियां असी बातां पाउने आ कि उन्होंने किसी ने महाराजा बनाया सी, कदे किसी ने उन्होंने कोई पैसे दिता भी महाराज जी इथों लंघ के महाराजे बन जाओ तुसी। इत्थे तां वो जिहड़ा इतिहास दा एक असी पाठ पढ़ते हैं ना कि कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। कोई अपने मोढे माढे मार के कोई भीड़ चो गाह लंघ जाए तो लंघ जाए, असी नहीं लंघण देंदे किसी नूं। मैं यही वास्ता 2 दिन पहला भी पाया सी भी रब दा वास्ता। लोग कहंदे ने तुसी देवते हो फरिश्ते हो, आपां 4 दिन चुप ही कर जाइए। 4 दिन अपनियां गतिविधियां नूं विराम दे दईए। साडी गलती ये है कि साडे कोल अपनी गल करन वास्ते ना अपने शब्द ने, ना साडे कोले अपनियां कोई उदाहरणां ने। वो फिर दूजे थावां तो चुक चुक के खिच खिच के लिया के वो धक्के नाल असीं उन्हां नूं जोड़न दी कोशिश करदे हां। वो जुड़दियां है नहीं, बन नहीं सकदियां। निर्मल ते न्यारा जिहड़ा पंथ है, ये शब्द भाई गुरदास ने दिता है। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। पंथ शब्द गुरु कलगीधर पातशाह तो नहीं आया,
ये भाई गुरदास तो आया है। ये जपजी साहब तो गुरु नानक तो आया है। मन्नै मग ना चलै पंथ, ये शब्द गुरु नानक साहब ने बख्शिया सी। गुरु कलगीधर पिता महाराज ने उस सिक्खी नूं जिहदा बीज गुरु नानक ने बीजिया, जिहदी गोडी, जिहदी संचाई, जिहदी राखी, जिहदी वाड़ बाकी गुरु साहबाना ने कीती है, उस सिक्खी नूं खालसे दे रूप विच पंज ककारां दे अंदर फ्रेम कर दिता और कह दिता कि निशान ए सिक्खी पंज ई हरफ काफ। सिक्खी दियां निशानियां इहो ही ने पंज भाई। पहली केस, दूजी कंघा, तीजा कशहरा, चौथी कृपान, पंजवां कड़ा। चरण पहल नूं खंडे बाटे दी पहल विच गुरु कलगीधर पिता जी ने सानू दृढ़ करा दिता। अज भी आनंदपुर साहब जाओ, उत्थे शब्द अमृत नहीं लिखिया होया, उत्थे शब्द है पीवो पहल खंड धार होए जन्म सुहेला। आम लिखतां विच शब्द आउंदा है पीवो पहल खंडे धार होए जन्म सहेला। वो चरण पौल सी, ये खंडे बाटे दी पौल है। शरधा आस्था दे विच आके सी इहनूं अमृत कहा, पर अमृत कहण तो बाद असी अपने आप नूं फिर बचाउण दी कोशिश विच लग गए कि तो बड़ी बडमुली दात है जी, बड़ी महंगी दात है जी, मेरे वर्गे पापी नूं ये किवें नसीब हो सकती है। उन्होंने पुछो भी तेनों बोतल रोज़ नसीब हो सकती है, तेनों भुक्की दी अफीम दी, तेनों ये नशियां दी ये वस्तु रोज़ नसीब हो सकती, अमृत नहीं हो सकता? किते ऐसा तो नहीं। एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दरबार साहब चला गया, और कोई मेरे वर्गा चाहिए तो यह सी ये कहना कि प्रधानमंत्री साहब जी इत्थे मत्था टेकिया तो इथों प्रसाद भी लै लो। मैं बेनती करा कुछ वस्तां ऑन सेल नहीं होनियां चाहिए, ऑन डिमांड होनियां चाहिए ने। जे अगला चाहता है तो, जे अगला मंगता है तो, वो मेरे वर्गा प्रसाद लैके मगर तुर गया, कहता जी प्रसाद लै लो। वो कहता क्या है? हुण मेरे वर्गे ने व्याख्या की, कहता जी हलवा है। कहता मेरे यहाँ लगा दो। वो गंजा सी। पर पुछो भी गऊ मूत्र पीण वाले नूं की पता कड़ा प्रसाद की हुंदा है? असी नशियां दे विच वह तुरे लोकां नूं की पता है कि सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। जेड़े आत्मक जीवन देण वाले जल नूं देवते लोचदे सी, जिहदी खातर उन्होंने कहंदे समुंदर रिड़क दिता, एक मिथ्यास है। गुरु ने त्रुठिया, गुरु ने साडे ते कृपा की, गुरु ने त्रुठ के ये दात साडे घर बैठिया साडे बख्शिश कर दी। पर साडी हालत यह है कि अमृत कौरा बिखिया मीठी, साकत की बिद नैनो डीठी। होर साकत किनू कहंदे ने?
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓ ਕਲਕੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। मैं एक बेनती करा, अज सारे असी एक दूजे नूं की पुछदे हैं? कोई पुछदा कारोबार दा की हाल है? ना। तुहाडे बैंक बैलेंस दा की हाल है? तुहाडी प्रमोशन दा की होया जी? वो तुसी अपलाई कीता सी, तुहाडी PR दा की होया? तुहाडा वीजा लगा कि नहीं लगा? ना। असी इक्को गल पुछदे हैं भी घर दे जी ठीक ने। साडे बजुर्ग इको ही गल कहंदे हुंदे सी, पुत्र जियां दी सुख चाहीदी है। कोई नुकसान हो जाना, अज भी जदों एक्सीडेंट हो जाण ना किते परिवार दे, ते लोग इको ही गल पुछदे ने भी जी ठीक ने। तगो मेरे वर्गा मूर्ख कहंदा जी गड्डी टुट गई, कहंदा काका गड्डियां बथेरियां, माया की है? माया ते तुहाडे हत्थां दी मैल है। जिउंदे रहोगे तो लख गड्डियां कमा लोगे, पर जे जिउंदे ही ना रहे तो गड्डियां की करनियां? अज असीं सुनते हैं क्रिश्चनां दियां चर्च विकदियां ने। क्यों विकदियां ने? इस करके नहीं विकदियां कि क्रिश्चन गरीब ने, उन्हां नूं पैसिਆਂ ਦੀ लोड़ है। गल ये भी वो ढह रही ने, टुट रही ने। अज सानू फिक्रमंद होना चाहिए संगत के प्रति। ये जिहड़ा पावन शब्द है, अज जिहड़ा पावन गुरपुरब भी है ना, आपां इन्हां नूं आपस विच जोड़ के दृढ़ करने की कोशिश करनी है। भगत रविदास जी का शब्द है, सतगुरां ने इहदे ते मंगल दर्ज कीता सी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रब एक है, एक थां ते नहीं है, वो सर्व व्यापक है। वो गुरु की कृपा नाल मिलदा है। मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते। कोई दुनिया का तरीका नहीं कि रब मिलेगा। रब जदों भी मिलेगा भगती दे राही मिलेगा, बिना भगती तो रब नहीं मिलता। गोबिंद भाओ भगत दा भुखा। और दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, कोई ये तो कह सकता जी मैं सोना दान नहीं कर सकता, मैं हीरे मोती दान नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति ये कह सकता जी मैं बजुर्ग हो गया, मैं उस तीर्थ स्थान ते नहीं जा सकता। पर पूछो भी बैठ के तू रब रब भी नहीं कर सकता? कि तू बैठ के वाहिगुरु वाहिगुरु भी नहीं कर सकता? सतगुरां ने सानू वो तरीका दिता है। देखो जिहड़ा प्रसाद दिता, कुछ मिनटां घंटियां दे बच्चे तो लैके 125-30 साल के बजुर्ग तक कोई व्यक्ति है जिहड़ा कहे जी मैं कड़ा प्रसाद नहीं खा सकता? प्रसाद वो दिता है। ते धर्म का रस्ता वो दिता है कि मनुख आखिरी श्वास तक उस वाहिगुरू नूं सिमर सकदा। इहदे लई ना दंदां दी लोड़ है, ना अखां दी लोड़ है, ना हत्थां दी लोड़ है, ना पैरां दी लोड़ है। इहदे लई सिर्फ श्वासां दी लोड़ है। हुक्म ही ये है, सास सास सिमरो गोबिंद। इतनी क्या जा सकता ना भी हुण मेरे मूँह च दंद नहीं जी, मैं वाहिगुरू किवें कवां? दंद ना होण ते सेब नहीं खाधा जा सकता, छोले नहीं चबे जा सकते, गन्ने नहीं चूपे जा सकते, वाहिगुरू ते क्या जा सकता है? और सानू हुक्म भी यही है।
कि यतन करो कि एक भी श्वास उस रब की याद तो बिना नहीं गुजरना चाहिए। ये यतन करो भाई। दूसरी पंक्ति है, साध संगत पाई परम गते। भगत जी कहते जदों मैं रब दे प्यारियां दी संगत विच आया तो मैनू परम अवस्था की प्राप्ति हुई। संगत विच आके मैनू पता लग्या कि करना की है। मैं बेनती करा, संगत मां है, गुरु पिता है, सिख पुत्र है। अज असी अपने घरां विच गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर लिया। उस आस्था नूं, उस शरधा नूं एक वारी नहीं 1000 वारी नमस्कार है कि जे तुसी मनदे हो कि इस घर का मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहब है। और ये मैं वेख्या भी है, बहुत सारे घरां दे विच इस गल का प्रभाव है कि महाराज का प्रकाश है घर में, इस करके ये गल्लां इस घर च नहीं हो सकदियां। पर घर में प्रकाश करके भी असी साध संगत दे इस निजम तो असी मुक्त नहीं हो सकते। देखो जिहड़ी तुसी भगती कल्ले बैठ के करनी है वो मुबारक है, पर जिहड़े बचन गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने आखे ने, जिन्हां दा अज प्रकाश गुरपुरब है 15 अप्रैल वैसाख वधी 7वीं 1563 विच बीबी भानी जी की कुख तो सोढ़ी सुल्तान सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे घर गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो। सतगुरु जी ने अवतार धारण किया सी। फिर सानू उपदेश दिता सी, आख्या सी बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को बैरी नाहे बेगाना सगल संग हमको बनाई। संगत विच आउण तो बिना परम अवस्था नहीं मिलेगी। तुसी कल्ले बह के भगती करोगे ना तो करामातां ते आ जाणगियां, पर ओहो जिहियां होणगियां जिहो जिहियां सिद्ध जोगी लोकां कोल सी। सिद्ध जोगी लोकां कोल गुरु नानक साहब गए तो की उन्होंने वैलकम किया, की उन्होंने जी आया आख्या, की उन्होंने स्वागत किया? ईर्खा की उन्होंने, कहते तू किवें आ गया बई। असी तो इत्थे बड़ी साधना करके आए हैं। उन्हें सवाल किया कि हे नानक, कि तेरे कोल कोई करामात है तो कुछ विखा ले असां नूं, सानू भी विखा। सतगुरु कहन लगे करामात असां ते नाही, गुरबाणी संगत बिना दूजी ओट नहीं है राई। तो मैं अज अपने वक्त दे हर आगू नूं कहना चाहना कि ये दो चीज़ां वापस लै लो, एक गुरबाणी एक गुरु संगत। मैं संगत नूं भी बेनती करांगा कि इन्हां निजमां नूं, इन्हां प्रिंसीपलां नूं लागू कर दिओ कि जिस मनुख ने संगत दे विच
संगत दे आगू हो के, मुखिया हो के चलना है, उहदे वास्ते दो चीज़ां बहुत जरूरी ने। क्योंकि संगत विच आए तो बिना ये पता ही नहीं लगेगा करना की है, करना किवें है, ये कौन दसेगा? कल्ले बंदे बैठे नूं कौन दसेगा भाई? गुरुद्वारा सीसगंज साहब एक हिंदू बजुर्ग, मैंने तो बजुर्ग ही मिले जदों मिले हो, उन्हां दा नाम सी श्री चंद। रेलवे च नौकरी की उन्होंने, पर जदों तक मैनू मिले सारे उन्होंने भगत जी कहते सी। वो शमले वाली पग बन्नते सी, वो रोज आउंदे सी सीसगंज साहब ते बिल्कुल स्टेज दे कोल बैठते सी। वो कथा वालियां दे, कीर्तन वालियां दे पैसे भी जोड़ी जाने उन्होंने, पर उन्हां दा ध्यान कथा कीर्तन वाले दे विच ही हुंदा सी। कई बारी मेरे नाल भी होया, कोई गल कहनी, कहना ज्ञानी जी दोबारा कहो, वो नाल ते बैठे हुंदे सी स्टेज दे पावे दे कोल। वो मैनू एक बारी अपने घर लै गए, कहते मैं तुहानू अपने घर लैके जाना। सुराए रोहेला रहिंदे सी, वो कहन लगे मैं तुहानू अपनी कथा सुनाउणी है कि मैं रेलवे च नौकरी करदा सी, मेरे घर बच्चा नहीं सी, मैं रोज पैदल गुरुद्वारा सीसगंज साहब आउंदा सी। फिर वक्त आया मैं साइकिल ते आउंदा रहा, पर एक दिन जदों मैं नौकरी करके अपने घर गया, उत्थे रेलवे दे ना सरकारी फ्लैट भी हैगे ने, उत्थे उन्हां दे विच रहिंदे सी उदों जदों नौकरी करदे सी। जदों मैं मिलिया उन्हां दा अपना प्राइवेट घर सी उत्थे, ते कहंदे भी मेरे घर ना चुल्हे विच अग ना घड़े च पानी, ते मेरी घरवाली मंजे दे उत्ते मूधे मूँह पई रो रही है। या जदों मैं जाके आवाज मारी तो रोन लग पई, मैं जदों वेख्या तो रोंदी सी। मैं कहा की होया? कहंदी अज मैं गई सी टूटी ते पानी भरन, ते जदों मैं जाके अपना उत्थे घड़ा रखिया, भांडा रखिया, ते उत्थे जिहड़ियां होर औरतां सी उन्हां ने मेरा भांडा भांडियां दे विचों बाहर कढ दिता। किते बांझ औरत है, इहदे बच्चा नहीं है, ये बे औलाद है, इहदा भांडा साडे भांडियां विच नहीं रखिया जा सकदा। कहन लगा मैं उन्होंने वराया, चुप कराया, समझाया, उठाया भी मेरे कोल ते कुछ नहीं हैगा, मेरे कोल ते गुरुद्वारा सीसगंज साहब है, चल फिर मेरे सवेरे नाल चल। कहंदा सवेरे जिवें मैं आउंदा सी मैं उन्होंने लैके गुरुद्वारे आ गया, आके अरदास की भी गुरु तेग बहादुर साहब साडे कोले की है, ये कुछ कल होया है, एक बच्चे दी पुत्र दी दात ही दे दिओ। ते महाराज ने फिर एक नहीं उन्होंने 3 पुत्र दिते, एक धी दी। उन्हों का दमाद मेरे घर भी आता रहा, समा पा के उहदे नाल भी मेरी सांझ रही। हुण भगत जी कहते भी मेरा ते भरोसा जिहड़ा सी वो जुड़ गया, भरोसे दे विच किल लागे भी इस तो वड्डा प्रमाण, इस तो वड्डी करामात, इस तो वड्डा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर एक दिन कहते मैं की वेख्या कि जोड़ा घर दे विच एक हिंदू लड़का कदे आलू पूड़ी कदे छोले पूड़ी वो वरताउंदा है। उदों बड़ी थोड़ी जी जगह हुंदी सी सीसगंज साहब। कहंदे मेरे मन च आई कि यह लड़का जे लंगर बना के लिया सकदा है घरों, तो मैं तो कुछ भी नहीं लिया हुंदा, तो मैनू तो ये नालों पहला आना चाहिए गुरुद्वारे। कहंदे मैं अपना टाइम चेंज किया,
ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ लड़का उत्थे बैठा सी। अगले दिन होर टाइम अपना बदलिया तां भी लड़का उत्थे बैठा सी। कहते तीजे दिन तो मैं पूछ ही लिया भी काका तू सौंदा नहीं? तो उस काके ने कहा भी नहीं बाऊ जी मैं रात को सोता नहीं। वो कहते भी क्यों? कहता जी बड़ी लंबी कथा है। कहता जदों मैं 10वीं पास की ना ते बड़ा खुश स्कूल तो घर आया ते जिवें ही खुशी विच मैं घर दे दरवाजे की सरदल लंघी तो मैनू खुश वेख के मेरी मतरई मां कहन लगी पास हो गया है। इस तो पहला कि मैं वो पैर छूंदा, मैं मत्था टेकदा, मैं सीस लैंदा, मैं क्या हाँ मां, तो कहन लगी हुण ते किते मर जा, हुण भी मूँह चुक के फिर इधर नूं आ गए, निकल जा करो, बहुत पढ़ लिया। मैनू घरों कढ़ दिता गया। कहना मैं उस दिन का इस दर ते आया सीसगंज साहब, उही कपड़े सी जिहड़े मेरे पाए हुए सीगे ते मैनू किसी ने सीसगंज साहब 2-3 दिन 4 दिन वेख्या तो मैनू वो भी हिंदू वीर सीगा ते उन्हें मैनू पूछा भी काका तू की करदा है? कहता जी मैं कुछ नहीं करता। कित्थे रहना है? कहता जी किते नहीं रहिंदा, इत्थे ही रहना। पढ़िया भी है थोड़ा बहुता? कहन लगा जी मैं 10वीं पास हाँ। कहते उन्हें मैनू 20 रुपये दिते, आ मेरा एड्रैस है कनाट प्लेस का, ते तू कपड़े नवें धो के पा के मेरे को आ जी। कहते उन्हें मैनू नौकरी दे दी। कहता उस दिन तो बाद मैं रात नूं नहीं सौंदा। भगत जी कहते मेरा तो सारा हंकार ही टुट गया। कहते मैं सोचता सी कि मेरे तो वड्डा नेमी प्रेमी कौन हो सकता है। मैंने तो बच्चे इत्थों मिले ने, मैं इन्ने वजे गुरुद्वारे आउना। कहता उस छोटे जे बच्चे ने मेरा हंकार तोड़ दिता। संगत विच आउण दा सिर्फ अर्थ जिहड़ा मैनू पहला समझ आया वो यही है कि कदे भी मनुख अपनी भगती का अपने पाठ का हंकार नहीं करेगा। इत्थे पता ही नहीं, जे आपां कहिए ना सेवा करन वाले उन्हां दा भी कोई पता नहीं। इत्थे जदों आवांगे ना उदों मैनू अपने एक जपजी साहब का हंकार नहीं होएगा, मैनू अपने एक सुखमनी साहब का हंकार नहीं होएगा। इत्थे कई सुखमनी पढ़न वाले बैठे होणगे, इत्थे एक दू एक चढ़ांदियां ते कौन जाने मेरा नाम जियो। ये गल्लां संगत विचों ही हो सकदियां ने। संगत क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भी तुसी धर्म कर्म करोगे उहदे नाल तुहानूं हंकार होएगा। पुछ लो गुरु तेग बहादुर साहब नूं, तीरथ बरत अरदान कर मन में धरे गुमान, नानक ने फल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। ते संगत विच आया ये हंकार मुक जाते ने भाई। इत्थे आया तुहानूं पता लगेगा कि तुहाडे तो वध दान करन वाले, तुहाडे तो वध इशनान करन वाले, तुहाडे तो वध नेम रखण वाले इस धरती ते बैठे ने, इस घर विच हैगे ने भाई। हर सिख नूं हुक्म है इशनान करे अमृत सर नहावे। हुण इस पंक्ति दे अर्थ ही संगत बनते हैं। इशनान करे तो गल समझ आ गई भी घर नहा लिया, ते अमृत सर नहावे दा सिख नूं की अर्थ है? ये पाठ उदों दा जदों अमृत सर हुंदा ही नहीं सी। मेरी गल दा गुस्सा ना करना। ये गुरु रामदास ने जिहड़ी सिख की परिभाषा दसी है, गुर सतगुर कहा जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवे। उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नहावे। गुरु रामदास ने अमृत सरोवर की सेवा शुरू की है, पर उन्हां दी हजाती विच सेवा पूरी नहीं सी हुई। सतगुरु ज्योति जोत समा गए। सेवा पूरी किन्हां कीती? जिन्हां दा अज प्रकाश गुरपुरब है।
गुरु अर्जन साहब महाराज ने अमृत सरोवर का अमृतसर का गुरबाणी का इस पंक्ति का जिहड़ा अर्थ है ये हर सिख वास्ते रोज संगत है भाई। और ये चेता रखना कि जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। और संगत के प्रति सुन लेना कि काहू की संगत मिल जीवन मुक्त होत, काहू की संगत मिल जमपुर ले जात है। संगत भी कई किस्म की है, एक संगत चंगी है, एक माड़ी है। चंगी संगत में आवोगे जीवन मुक्त हो जाएगा, माड़ी संगत में जावोगे जीवन बर्बाद हो जाएगा। अज किसी का बच्चा बिगड़ जाए तो मेरे वर्गा मूर्ख कहता भी तुहाडे तो चार लाइयां नहीं जांदियां, इहदे गिट्टे गोडे नहीं डंडा फड़ के तोड़े जाते। सियाणा बंदा कदे नहीं कहता, वो कहता जी तुहाडे बच्चे का कसूर नहीं, तुहाडे बच्चे की संगत माड़ी है। अपने बच्चे ने संगत चो बाहर कढ़ लो, तुहाडा बच्चा ठीक हो जाएगा। मनुख अपने आप विच कुछ भी नहीं है। तुहानू पता है मनुख एक संगती जीव है। अज दी तरीक विच भी सब तो वड्डी पनिशमेंट है कि किसी नू जेल दे विच किसी काल कोठड़ी विच बंद कर दिओ। इस तो वड्डी कोई सजा नहीं है। उन्होंने उथे रख दिओ जिथे उन्होंने कोई मिले ना, जिथे उहदे नाल कोई बोले ना, जिथे उन्होंने कोई दिसे ना, वो तो खुद ही पागल हो जाएगा। इस करके भाई ये पंक्तियां आप पढ़ लीए, फिर अगे चलीए कि भई प्रापत मानक देहोरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। संगत विच आउणा ते परमात्मा की भगती करनी। गुरबाणी संगत बिना दूजी ओट नहीं है राई। गुरु नानक साहब जी दे प्रति ये जवाब है। उन्हां सिद्ध लोग जोगी लोकां नूं गुरु नानक दे घर विच सब कुछ संगत है। कबीर मन पंखी भयो उड उड दै दिश जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। हर कीरत साध संगत है सिर करमन कै कर्मा। अगर कदे जिंदगी च तुसी चाहो कि मैं उत्तम कर्म धर्म दे करने ने तो वह जोड़े झाड़ना नहीं है। नहीं तो जोड़े झाड़ते झाड़ते बंदे झाड़न लग जाओगे। वो भांडे मांजना नहीं है, भांडे मांजते मांजते बंदे मांजन लग जाओगे। अज भी अमेरिका का सिख कल्चर सोसाइटी का गुरुद्वारा गवाह है कि जिथे कड़ाह प्रसाद का बाटा मार के उतों के प्रधान की बांह तोड़ दी गई सी। कि कड़ाह प्रसाद के बाटे नाल लोगों की बांह टुटदी हुंदी है। कड़ाह प्रसाद ते एक अमुल दात है गुरु नानक दे घर दी। गुर प्रसाद तो बाद कड़ाह प्रसाद आउंदा है। पहली बख्शिश गुर प्रसाद है, महाराज की किरपा है। तो जो उदों बाद गुरु घर में कुछ मंगीए तो कड़ाह प्रसाद ही है। तो उस एडी उत्तम वस्तु रखण वाला भांडा चुक के असी किसी की बांह तोड़ दईए, हाँ तोड़ सकते आप जे असी इन्हां दो चीज़ों में नहीं हैगे तां। क्योंकि हर कीरत साध संगत है सिर करमन के कर्मा। जिहड़ा संगत करेगा वो ऐसा माड़ा कर्म नहीं करेगा। संगत विच आया समझ आउंदी है कि भाई तू अपने गरीवान विच वेखना है। भगत जी की कहते ने, मैले कपड़े कहाँ लो धोवो। कहते मैं कदों तक लोगों की निंदा करांगा, मैं सवेरे उठदा मैनू काम ही इहो है। नहीं, मैनू संगत विच आके गल समझ आ गई है कि निंदा भली किसी की ना ही
अगे की है, मनमुख मुग्ध कराना। निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुग्ध कराना। निंदिया करनी चंगी नहीं, तो करदे कौन ने? जिहड़े मनमुख ने, जिहड़े मूर्ख ने। भी जिन्ना चिर निंदिया चुगली ते लाउणा है, जे किते इन्ना चिर सवेरे तू बाणी पढ़ लैनो ते भाई। एक मुसलमान एक प्रचारक ने एक गल लिखी है, बोली भी उन्हें, उहदी शायद वीडियो तुसी सुनी भी होवे। वो कहता मेरे को एक बंदा आ गया तो आके कहन लगा कि मैं इन्नियां सारियां थावां ते धर्म स्थानां ते जाके वेखिया ते हर थां तो मैनू कोई ना कोई गलती जिहड़ी है वो लभी है। तो मैं उन्होंने डायरी च नोट किया तो अज उन्हों की गिनती 100 हो गई है। तो बोलन वाला जिहड़ा मुलाना सी कहन लगा बड़ा मूर्ख है तू 100 धर्म स्थानां ते गयो, 100 गलतियां तेरे नोटिस विच आईयां, 100 गलतियां नाल तू अपनी डायरी भर लई। मूर्खा 100 थावां ते गया है, जे किते एक एक चंगी गल उथों लै ओनों अज 100 चंगियां गल्लां तेरे कोल हुंदियां, तेरा खजाना हुंदा, 100 चंगियां गल्लां नाल तेरी डायरी भरी हुंदी। मैं काप जी नूं बेनती करा निंदिया छड्ड दिओ। उहदा कारण है तुहाडी निंदिया नाल किसे दा कुछ नहीं जे विगड़ना। नहीं तो पुछ लो भगत जी नूं। मैं तो एक दिन अगे भी बेनती की सी कि 2 बंदियां नूं निंदा बड़ी सूट करदी है, पॉलीटिशियन नूं भी करदी है, सियासतदान नूं भी करदी है, संत नूं भी करदी है। संत की कहंदा है, पुछो भगत कबीर नूं, कहंदे निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा मैं तारी। वो की कहंदे ने? कहंदे निंदक सो जो निंदा हो रहा है, कहंदे मैं उन्होंने भी निंदक कहांगा जिहड़ा मेरी निंदिया करन वालियां नूं कवे भी तुसीं ना करिया करो, क्योंकि निंदक हमारा जीवन लोड़ है। कहंदे निंदक ते है जिहड़ा रोज मेरा जीवन लोड़दा है, वो चाहुंदा है मैं जिउंदा रहां, मैं तरक्की करा। दूजा सियासतदान है, हुण तुसीं ओहदी निंदिया करो, आपां की सोचते हैं ये बदनाम होएगा, तो उन्होंने पूछ के वेखो भरा तू दस, वो कहता बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? कहता पब्लिसिटी तो हो रही है ना, तो जोगी पब्लिसिटी दा एनालिसिस नहीं है दुनिया दे विच। ये मत सोचना एनालिसिस कोई नहीं है। इस करके भाई ये रस्ता छड़ के आपां चलीए। भगत जी कहते ने मैले कपड़े कहाँ लो धोवो, मैं लोगों के कपड़े कदों तक धोंदा रवांगा, कदों तक सवेरे उठ के मैं लोगों की निंदिया चुगली करता रवांगा? नहीं, संगत विच आके मैनू समझ आ गई है कि तेरे कोले जीवन का समा सीमित है, जिंदगी बहुत छोटी है। रास बरानी राखते खाया घर का खेत, तू लोगों दियां खेतों दियां राखियां करदियां करदियां तू अपनी खेती संभाली नहीं। साडे बजुर्ग धारना लाउंदे हुंदे सी, वो कहंदे गठड़ी अपनी संभाल, तैनू होर नाल की तैनू चोर नाल की। सानू रब ते भरोसा करना चाहिए। कहंदे रब दी जिहड़ी डांग है ना, उहदी आवाज़ नहीं है पर सट बड़ी डूंगी है। आप की सोचते हैं कि माड़े काम करने वाले नूं रब सजा नहीं देवेगा? बड़ी वड्डी गलती। नाले कही जाने राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, ते भगत ध्रुव दा ते भरोसा ही ये सीगा। पिता कहंदा सी अग विच साड़ देंगा, वो कहंदा पिता नहीं। वो कहता सी जल च डोब के पानी च डोब के मार देंगा, कहता पिता नहीं। वो कहता मैं तेनू पहाड़ तो सुट के मार देंगा, अगो बच्चा कहता पिता जी नहीं।
ਨਿਰਭੈ ਬਾਰਕ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰੇ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਡਾਢਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈ कि रोगण ते अर सोगण ते जल जोगण ते बहु भात बचावे। छतर अनेक चलावत घाव तौ तन एक ना लागण पावे। कदे दुश्मनां दे तीरां नाल भी कोई मरिया है ना? बंदा मरेगा। मैं तो बहुत बारी बेनती की थी, वो बंदा एक ना बंदा रिवाल्वर साफ कर रहा सी, मैं कोल बैठा तो पता मैनू की कहंदा है? कहंदा वेखो ज्ञानी जी, बंदे ने बंदे नूं मारन दे किन्ने तरीके तैयार कीते ने। वो गल मेरे दिमाग च रही, सालों साल बीत गए तो हुण जाके गल समझ आई भी बंदे नूं बंदा मारन दी की लोड़ है। बंदे नूं मारन लई ते रब ने आप ही बड़ा प्रबंध कीता होया है। जिनकी चीरी दरगह पाटी तिन्ना मरना भाई, ये वैदो ना वाई भैणो ना भाई एको सहाई। रब ने है कोई दुनिया च बचाउण वाला? भगत जी कहते मैनू समझ आ गई संगत विच आके कि मैले कपड़े कहाँ लो धोवो, आवेगी नींद कहाँ लग सोवो। मैनू संगत विच आके समझ आ गई है मैं अविद्या दी नींदर विच नहीं आवांगा, मैं अज्ञानता दे विच नहीं सोवांगा, मैं अपने श्वास नहीं गवावांगा। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो। जो मंदे कर्मां दियां सोचां मैं इकट्ठियां कीतियां सी, जदों मैं संगत विच आया तो सारी मेरी रास पूंजी गवाच गई, फट गई। गुरु ने समझा दिता, बंदिया तू किहड़े पासे तुर पिया? मन रे कौन को मत तै लीनी। परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह कीनी। मैं एक बेनती करा, गुरुद्वारे तो बाहर किसी बंदे नूं कहो कि भरा जी मैं ना अज गुरु अर्जन साहब जी की साखी सुनी है तो तुसी ना घर पहुंचो तो मैं तुहानूं ना साखी सुणावांगा। वो तुहानूं बंदा कदे नहीं फोन करके पूछेगा भी वो साखी क्यों नहीं सुनाई। पर तुसी बाहर निकल के जोड़ा घर दे कोल खलो के उन्होंने कहो भी मैं तेनों ना ज्ञानी रणजीत सिंह की गल सुणावांगा। पर अजे मैं थोड़ा जिहा बिजी हाँ, मैं 10-11 बजे तेनों फोन करांगा। मैं तुहानूं बेनती करा भी वो 8:05 ते तुहानूं गड्डी च बह के कॉल करेगा। वो सुनाओ भला ज्ञानी रणजीत सिंह की किहड़ी गल है? क्योंकि असी निंदिया दे विचों रस लैने आ, सानूं निंदिया चों रस आउंदा है। असी किसी की बुराई सुननी चाहुंदे आ, असी किसी की शोभा वडियाई नहीं सुननी चाहते। कदे फॉरवर्ड की किसी की चंगी गल ना, कदे किसी नूं शाबाश दी आपां ना। अज माड़ी पोस्ट पा दिओ सवेरे वायरल हो जाएगी। मैनू कईयां ने करोना भी कर दिता, कईयां ने मैनू क्वारंटाइन भी कर दिता, कईयां ने 14 दिन दी अरदासां भी कर दित्तियां। कईयां दे फोन भी आ गए। मैनू तो समझ है, मैं एक बेनती करा, चंगी गल न्यूज़ नहीं जे हुंदी। खुशखबरी न्यूज़ नहीं जे हुंदी, इसे करके कोई किसी नूं नहीं दिंदा। माड़ी गल ही न्यूज़ हुंदी है तो माड़ी गल ही खबर हुंदी है, इसे करके वो 1 मिनटां सकिंटां वायरल हो जाती है। तो आपां तुरियां फिरदियां चलदियां फिरदियां अखबारां, चलते फिरदे टीवी, आपां नूं काम ही कोई नहीं। साडी हालत तो गुरबाणी च लिखी हुई है कि हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही असमान गरावे। ऐसे लोगन स्यों क्या कही है, जो प्रभ किए भगड़ते बाहज तिन ते सदा डराने रहिए। आ जिहड़े भजे फिरदे ने, इन्हां नूं कहो खां भी अमृत छक लो, गुरु वाले बन जाओ, अमृत वेले उठिया करो, बाणी पढ़िया करो, नितनेम करिया करो। देखो फिर बजर सिर परे कि ना परे,
सिर च पत्थर डिगदा इन्हां दे। झूठे बनज उठ ही गई हाटिओ, कहते जिहड़ी मैं झूठ की हट्टी पा के बैठा सी ना, भी झूठ ही सुनना ते झूठ ही वेचना, कहते जिदन दा संगत विच आया तो हट्टी टुट गई है। मन ही नहीं करता कि झूठ सुनिया जाए तो अगों झूठ फारवर्ड किया जाए, सुनाया जाए। कहो रविदास भयो जब लेखो संगत विच आया तो मैं अपना लेखा जोखा किया, अपने आप नूं पुछया कि मन रे कौन को मत तै लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी। समझ आ गई ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो नए उपजो कश ज्ञाना। तेरे को तो कुछ भी नहीं हैगा। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा। जोई जोई कीनो सोई सोई देखे हो। गुरु की संगत में आके मैनू अपने कर्म सामने नज़र आ गया कि मैं तो कदे कुछ चंगा नहीं किया। भाई नंद लाल साहब ने एक वचन आख्या है कि एक दिन बाजा वाले पासों प्रेम सुराही पीती। सुराही उस भांडे नूं कहंदे जिहदे विच शराब रखी जाती है। लोग मद पींदे ने, सराइयां चों कढ़ कढ़ के लोग नशा करते हैं। तो गुरु कलगीधर पातशाह दे कोल एक सराही है, वो प्रेम दी है, प्यार दी है। भाई नंद लाल कहते मैं गुरु कलगीधर पिता की सराही विचों जिहड़ी प्रेम दी भरी हुई सी, एक दिन बाजा वाले पासों प्रेम सुराही पीती तो मैं सच बोल देता, क्योंकि मैं वेख्या दुनिया दे विच जिन्ना बंदा शराब पी के सच बोलता है ना, गुरुद्वारे जाके भी नहीं बोलता। वो फिर पी के फेकणगे, वो तैनू मैं दसदा गल, वो जापे निकल जाती पता नहीं। भाई नंद लाल कहते जदों मैं प्रेम की सुराही पी लई गुरु कलगीधर पिता कोलों, तो मैनू सच उगड़ आया अपने अंदरों। तो मैं कह दिता सारी उम्र गुनाही बीती, हर की भगत ना कीती। अगो गुरु कलगीधर पिता की कहन लगे, महाराज कहते कि आगे समझ चलो नंद लाला, पाछे जो बीती सो बीती। छड़ नंद लाल, जो हो गया सो हो गया। जेड़े स्वाद चले गए चले गए, जेड़ी जिंदगी बीत गई, बाकी संभाल ले। अगे तो जतन कर कि जिन्ना समा बाकी है वो गुरबाणी तो बिना, संगत तो बिना, सेवा तो बिना, सिमरन तो बिना वो जावे ना। इन्ने एक शब्द प्रवान करना जी। सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु अर्जन देव पिता महाराज दे पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब दियां लख लख वधाइयां। भुल्लां मेरियां ने खिमा कर देनियां। उपदेश सतगुरु जी का है, अपने पल्ले बन लेना। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बनाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।